हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द alteration in physical, chemical and biological characteristic of water. Water is contaminated and become unfit for human use for living beings. There's three types of water pollution, that is physical water pollution, chemical water pollution and biological pollution of water. Physical pollution of water. This includes the pollutant which brings changes in the physical properties of water like color, odor, density, taste, turbidity, and thermal properties. Second comes the chemical pollution of water. It occurs due to the presence of inorganic and organic chemicals such as acids, alkalis, toxic inorganic compounds, non-biodegradable substances, pesticides, fungicides, टॉक्सिक मेटल्स विच डिग्रेड वाटर सीरियसली, ये हमारा केमिकल पोल्यूशन है. Thirdly, biological pollution of water. It occurs due to the presence of pathogenic bacteria like fungi, protozoa, parasites, worm, algal blooms, sewage wastes. ये सारा हमारा biological pollution of water के अंडर आता है. Biological pollution of water can be divided into two further processes, that is biomagnification and eutrophication. Biomagnification. Biomagnification is a concentration of toxic substances which increases as they move upward through food chain or they move from low trophic level to higher trophic level. इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं. और इसमें जो केमिकल सब्सटेंस हमारा होता है वो जनरली उसकी लॉन्ग लाइफ स्पैन होनी चाहिए, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए और फैट सॉल्युबल होना चाहिए, तभी वो अपवर्ड मूव करेगा फूड चेन में. इसके एग्जाम्पल्स हमारे हैं मरकरी, डीडीटी एंड आर्सेनिक. और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, बट जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं दैट इज मरकरी, डीडीटी एंड आर्सेनिक. नेक्स्ट कम द eutrophication. It happens when water body becomes over rich in nutrients. जब वाटर बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाने लगे तो यूट्रोफिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें, और इसको एजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, एजिंग ऑफ वाटर बॉडी. इट इंक्लूड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन, pH increases, alkalinity increases, which affect the type and diversity of plants and animals. इसमें हमारे एग्जाम्पल है एल्गल ब्लूम्स आ सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है कि एल्गल ब्लूम्स इन डल लेक. डल लेक इज कम्प्लीटली पॉल्यूटेड और यूट्रॉफिफिकेशन हो गई है, अपने टाइम से पहले ही एज्ड हो गया हुआ है. यूट्रॉफिफिकेशन एक नेचुरल फिनोमेना है, बट जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हमारे वाटर बॉडी में चले जाते हैं, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या फिर और चीज़ें हैं, इससे एजिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है और यूट्रॉफिफिकेशन मतलब जल्दी हो जाता है. इसलिए जो वाटर बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, किसी के काम नहीं आती है, वहाँ मरने लग जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. और जो कंडीशंस उसमें होती हैं उसमें सर्वाइवल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो कम हो जाता है, प्लांट्स का या वाटर एक्वाटिक एनिमल्स का, वो सब मरने लग जाते हैं. इसका एग्जाम्पल है डल लेक इज कम्प्लीटली पॉल्यूटेड. Now we will talk about the sources of water pollution. Two types of sources I have discussed over here, that is point source and non-point source. Firstly, what is point source? Point source refers to the contamination that enter a waterway from a single identifiable source such as pipe or ditch. Example, sewage treatment plant, factory or city storm drains. सेकेंड हमारा है नॉन पॉइंट सोर्स. नॉन पॉइंट सोर्स वो होते हैं डिफ्यूज सोर्सेस, जनरली जो एकदम डिफ्यूज हो जाते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं पॉल्यूशन कॉज करते लेकिन रेडिली डिफ्यूज हो जाते हैं. इट रेफर्स टू डिफ्यूज कंटामिनेशन दैट डज नॉट ओरिजिन फ्रॉम अ सिंगल डिस्क्रीट सोर्स. एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स एंड सॉइल इन्फिल्ट्रेशन. Now comes the impact of water pollution. Impact of water pollution on human health. Polluted water cause jaundice, cholera, typhoid, amoebiasis, and many more diseases. Like mercury contamination can cause deafness, numbness of limbs,
and arsenic contamination can cause blackwood diseases and impact on marine life. Polluted water, which include trash, sewage, plastic pollution, cause death of aquatic animals, various reproductive and health problems to them. Hot water also cause pollution and disturbance to the marine life or the water plants. Water pollution has wide variety of its effect on plant life. Plant absorb harmful chemicals from water. It also affect from the microflora and micro and macroflora of that soil and promote invasive species or unwanted plants, which affect the rate of photosynthesis also. मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो प्लांट्स पे है क्या क्या पड़ेगा। एक तो वहाँ का माइक्रोफ्लोरा और मैक्रोफ्लोरा, मतलब जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स छोटे मोटे और बड़े वाले, उन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो वहाँ पे रहेंगे, कुछ वहाँ पे मरने लग जाएंगे, वाटर पोल्यूशन जो सहन नहीं कर पाएंगे। सॉइल वहाँ का पल्यूट होने लग जाएगा। प्लांट्स भी अगर वाटर में केमिकल्स होंगे, पोल्यूशंस होंगे, वही एब्जॉर्व करने लग जाएंगे। प्लांट्स एब्जॉर्व करेंगे तो उनकी साइकिल्स ख़राब हो जाएगी, रेस्पिरेशन प्रोसेसेस उनके डिस्टर्ब हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट या फ्रूट या जो भी वो बनाते हैं तो वो भी ख़राब होने लग जाएगा, और वही कंज्यूम करेंगे एनिमल्स तो फर्दर उनके लिए भी हार्मफुल हो। तो इट्स इम्पैक्ट्स ऑन एनिमल्स पे वाटर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है। तो पोल्यूटेड वाटर रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन and eliminate sensitive organisms like plankton, fish, and mollusks. Terrestrial animals suffer from serious health issues and may die due to the cause of high toxicity in water. हमारे पास एक एग्जाम्पल में ट्राउट एग फेल टू हैच एंड सम फिश फेल टू स्पॉन। जो इम्पैक्ट है वाटर पोल्यूशन का वो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स एज वेल एज एक्वाटिक एनिमल्स दोनों के लिए हार्मफुल है। तो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के लिए पीने के लिए पानी नहीं होगा या फिर होगा वो दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। Terrestrial animal suffers from serious health issues and may die in cause of high toxicity in water. Trout egg fails to hatch and some fails to spawn. तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन्हें पीने के लिए कोई साफ़ पानी नहीं मिलेगा, या फिर जो पानी मिलेगा वो टॉक्सिक होगा, उनको पियेंगे और वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारी स्पीसीज एक्सटेंट होने लग जाएगी। सेकेंडली जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स भी मरने स्टार्ट हो जाएंगे अगर वाटर पोल्यूशन होगा, चाहे थर्मल वाटर पोल्यूशन होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एग लाइंग सिस्टम है, और उनकी भी साइकिल्स और जो भी उनका लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वाटर पोल्यूशन सभी के लिए बहुत हार्मफुल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सबके लिए बहुत हार्मफुल है। अब हम वाटर पोल्यूशन की ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे। नाउ कम्स द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द वाटर पोल्यूशन। तो हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करेंगे: डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, सरफेस रन ऑफ, थर्मल वाटर पोल्यूशन, और यू कैन से इट वेस्ट हीट। तो सबसे पहले डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इन कॉमन पब्लिक प्लेसेस, ह्यूमन्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा है वो भी पानी में डंप कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर इन द form of food or other residues will be dumped into the water bodies. Detergents and other chemical waste that is from domestic or home from the will be released into the water body, and all these things will lead to rise in biochemical oxygen demand. हमारी बीओडी जो लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया एंड डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर विल इंक्रीज। पानी में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लग जाएगी दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन वो वाटर बॉडी या एरिया हमारा डेफिशिएंट है ऑक्सीजन में, ड्यू टू विच the animals or the plants suffer lack of oxygen. They will start dying and they will not able to survive over there. So BOD level क्या हमारा शो करता है, BOD level शो करता है कि वहाँ पे वाटर कितना पोल्यूटेड है। तो वाटर BOD level is directly proportional to water polluted in that water body. Next come the industrial effluent. Industrial effluents usually discharge waste water into ponds, lakes and river. इंडस्ट्रीज से जो भी केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स
है या फिर कोई और टाइप का वेस्ट है, वो सारा डायरेक्टली उनकी पॉइंट सोर्स डायरेक्टली वो रिवर में या लेक में डंप कर देंगे अपना वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेन हैवी मेटल्स, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कॉपर, कैडमियम एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। इस टाइप का वेस्ट इंडस्ट्रीज रिलीज करेगी, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग in inorganic pollutants such as acids, alkali and bleaching liquids। और organic pollutants हमारे जो इंडस्ट्री रिलीज करेगी जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, फाइबर्स और एन अदर ऑर्गेनिक मैटर्स। दो टाइप के वेस्ट ये रिलीज करेगी। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स में हमारे पास दो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, दोनों ही इंडस्ट्रियल रिलीज करेगी और वाटर पोल्यूशन कॉज करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस रन ऑफ। द सरफेस रन ऑफ फ्रॉम फील्ड ऑफ inorganic fertilizers, pesticides, insecticides, manures bring heavy load of pollution into natural water bodies। तो सरफेस रन ऑफ क्या होता है कि जैसे बारिश हुई और हमारे फील्ड में ऑलरेडी केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, मैन्योर्स है और अदर पॉल्यूटेंट्स है, कुछ भी हमारे सरफेस पे है, वो सारा बारिश के थ्रू वो या सरफेस वाटर रन ऑफ के थ्रू हमारा वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट होने वाला है और जो कि पोल्यूशन कॉज करने वाला है। तो सरफेस रन ऑफ जनरली अकर व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड टू फुल कैपेसिटी and rain arrives more quickly than soil can absorb it, which leads to phenomena like eutrophication and biomagnification। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि सॉइल समटाइम जब बहुत ही ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो गया है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स बहुत ओवरलोडेड हो गए हैं कि सॉइल एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा, तो जैसे ही एक रेन आई और सारा का सारा पानी में, और इससे हमारे ये दो फिनोमेना होने वाले हैं, यूट्रॉफिफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रॉफिफिकेशन मींस नेचुरल एजिंग, बायोमैग्निफिकेशन मींस कोई केमिकल ऐसा जो हमारी बॉडी में जाएगा और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स दी थर्मल वाटर पोल्यूशन। थर्मल वाटर पोल्यूशन में क्या होता है कि इट रेफर्स टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड नोन एज वेस्ट हीट। Thermal power plants, refineries, and the nuclear power plants, what they do, they discharge the hot water into the nearby lakes, rivers, and seas, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उस गर्म पानी में सरवाइव नहीं कर पाते, उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, या फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, वो वाला हैबिटेट लीव कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स, आई विल ब्रॉडली discuss it। Virus, bacteria, parasitic, protozoa, pathogens, and other organisms can cause disease directly to human. It is a source of waterborne disease like diarrhea, jaundice, cholera, typhoid, and amoebiasis। Mercury compounds in wastewater are converted by bacteria into more harmful or toxic form that is called methyl mercury, which can cause numbness of limbs, lips, tongue, deafness, blurring of vision, and mental problems or Minamata disease। Water contaminated with cadmium cause itai disease, a disease of bones and joint। Next, the excess of nitrates in drinking water is dangerous to human beings as it can react with hemoglobin of blood and form methano, methemoglobin and impairs oxygen transport। This condition is called मिथेमोग्लोबिन और ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये वाला डिजीज, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज नोट इट डाउन। Excess of fluoride in drinking water can cause neuromuscular disorder, painful joints, and gastrointestinal problems। Drinking of arsenic polluted water can cause black foot disease। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जो मैंने मेंशन करी है, वाटर पोल्यूशन के थ्रू कॉज हो जाती हैं ह्यूमन बींग्स में। So now comes the control measures to control water pollution। Hot water should be cooled before discharging into the river or any other source of water। Cleaning of streams and rivers should be done on regular basis। Organic farming and efficient use of animal residue, and it should not be dumped into the water directly into the water। Instead of chemical pesticides and fertilizers, we should go for biofertilizers, biopesticides। Wastewater should be properly treated
and it should not be dumped into the water. And few measures is taken by the Government of India. The Government of India has passed Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 to safeguard our water resources. And next, the Convention on the Dumping of Waste into Seas to be replaced by 1996 protocols. These two measures are done by the Government of India. You should note the year. So that's all for today. Thank you.